Welcome back dear students. Today we will see explanation of poem Life from Standard 9 Subject English. This is a motivating and optimistic poem which encourages the reader to take a positive view of life, especially during the periods of hardship and difficulties. This poem is written by Charlotte Bronte. So let's we start the poem. Students, I will explain it in Hindi also. Life, believe, is not a dream, so dark as sages say. After little morning rain foretells a pleasant day. In this stanza, the poetess takes a positive view of life. She says that life is not a dark dream, as the sages say. तो बच्चों यहाँ पर जो कवयित्री है वह हमें यह बताना चाहती है कि जीवन के प्रति हमें सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। वह कहती है कि जीवन कोई अंधकारमय स्वप्न नहीं है, जैसा कि संत कहते हैं। Instead, a little rain in the morning tells us that a pleasant day will follow. हमें यहाँ पर जीवन को अंधकारमय दृष्टि से देखने के बजाय इस सृष्टि के सौंदर्य को देखना चाहिए। जैसे कि सुबह की होने वाली थोड़ी सी बारिश भी हमें यह बता देती है कि एक सुखद दिन आएगा। जैसे कि बच्चों आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि सूखी हुई धरती पर जब थोड़ी सी बरसात आ जाती है, बारिश गिर जाती है, तो वह भी हरी भरी हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर बारिश का उदाहरण देकर कवयित्री हमें यही समझाना चाहती है कि सभी दिन एक जैसे नहीं होते। अगर शुरुआती दिनों में हमारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ होती है तो उसके बाद अच्छे दिन भी हमारे जीवन में आते हैं। Then second stanza is sometimes there are clouds of gloom, but these are transient all. If the shower will make the roses bloom, oh, why lament its fall? So students, in this stanza, poetess tells us sometimes there are clouds of gloom, means some problems in our life, but these are all temporary. If a little rain helps the roses to blossom, so why should we feel unhappy about it? If the problems we face make for better times ahead, why should we feel grief? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कवयित्री हमें ये कहती है कि हमारे जीवन में कभी कभी कुछ समस्याएं आ जाती है। यहाँ पर बताया गया है कि निराशा के बादल यानी कि कुछ समस्याएं, और यह सभी समस्याएं हमेशा के लिए हमारे जीवन में रुक कर नहीं रहती है। यह अस्थायी तौर पर होती है। अस्थायी यानी कि यह टेम्पररी होती है। जिस तरह से थोड़ी सी बारिश की बूंदें आकर कुछ गुलाब की कलियों को खिलने में मदद कर देती है, उसी तरह हमें अपनी खुद की मदद करनी चाहिए जब भी समस्या आए। अगर हम खुद अपनी समस्याओं का सामना करते हैं तो वो हमारे आने वाले वक्त को बेहतर बनाती है। तो हमें कोई भी समस्या के लिए दुख महसूस नहीं करना चाहिए। Then the third stanza is rapidly, merrily, life's sunny hours flit by, gratefully, cheerily, enjoy them as they fly. In this stanza, the poetess tells us the happy hours of our life fly by very quickly and merrily. We must enjoy them happily and thankfully as they go by. तो बच्चों, कवयित्री हमें यहाँ पर कहना चाहती है कि हमारे जीवन में जो भी खुशियों के क्षण आते हैं या जो भी खुशियों की घड़ियाँ आती है वह बहुत ही जल्दी और आनंद से बीत जाती है। जैसे जैसे वे खुशी के क्षण या घड़ियाँ आगे बढ़ती है वैसे वैसे हमें खुशी और कृतज्ञतापूर्वक उनका आनंद लेना चाहिए। Then the next stanza is what do that time steps in and calls our best away. What though sorrow seems to win or hope a heavy sway. So students, in this stanza the poetess tells us we must accept it if at times death takes away the people we love most. It also does not matter if sorrow seems to be winning over hope. तो बच्चों, यहाँ पर पोएटेस हमें यह कहना चाहती है कि कभी कभी हमारे जीवन में इस तरह के कुछ दुख आ जाते हैं, जैसे हमारा बहुत ही क्लोज या करीबी कोई होता है और उसे इस दुनिया से जाना पड़ता है, तो यह दुख हम नहीं सह पाते। पर यहाँ पर हमें पोएटेस कहती है कि हमें जीने की आशा नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी दुख से बड़ी आशा होती है,
और इन्हीं आशाओं के कारण हम सभी दुखों को भूलकर हमारे जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। Then the next stanza is, Yet hope again elastic springs, unconquered though she fell. Still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well. In this stanza, the poetess tells us for hope will again spring up with great elasticity. It is undefeated, even though it had been overcome. The golden wings of hope are still strong enough to bear us and help us to rise. सो बच्चों, यहाँ पर पोएटिस हमें यह कहना चाहती है कि होप्स यानी कि आशाएं हमेशा जीवित रहती है, वह कभी भी ख़त्म नहीं होती। जीवन में कितना भी बड़ा दुख क्यों ना आ जाए, आशाएं यानी कि होप्स ही हमें उन दुखों से उबरने की उम्मीद जगाती है। आशाएं अपराजित होती है, यानी कि उन्हें कभी ख़त्म किया नहीं जा सकता, हराया नहीं जा सकता। यहाँ पर पोएटिस हमें कहती है कि आशाओं के सुनहरे पंख ही हमें किसी भी दुख से ऊपर उठने और मजबूत बनने में हमारी मदद करते हैं। And the next stanza is, manfully fearlessly the day of trial bear, for gloriously, victoriously can courage quell despair. Here the poetess tells us we must bear our days of difficulties bravely and fearlessly. For the courage to face our problems can succeed wonderfully in helping us to suppress our despair. तो बच्चों, यहाँ पर पोएटिस हमें यह कहना चाहती है कि हमारे जीवन में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती है और उन कठिनाइयों के दिनों में हमें पूरी तरह से बहादुरी, निडरता से उनका सामना करना चाहिए, उन कठिनाइयों का समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि हमारी समस्याओं का सामना हमें ही करना पड़ता है। अगर हम साहस के साथ हमारी समस्याओं का सामना करते हैं तो साहस ही हमें निराशा को हराने में मदद करता है। यहाँ पर पोएटिस हमें कहना चाहती है कि केवल साहस से ही हम हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं, बहादुरी के साथ, निडरता के साथ। सो स्टूडेंट्स, आई होप दिस एक्सप्लेनेशन विल हेल्पफुल टू यू. Thanks to all for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel and don't forget to press the bell icon for new update.